راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کا اپنا پروگرام راہ زندگی اور میں ہوں آپ کے ساتھ عادل مشتاق اور میں ہوں عظمیٰ یونس۔ ہم دونوں کی طرف سے راہ زندگی کی طرف سے آپ سبھی سننے والوں کو بہت بہت سلام قبول ہو۔ تو جناب کیا حال چال ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دلی دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ سبھی کو سلامت رکھے، آپ خوش رہیں، آباد رہیں۔ تو خوشی کی بات ہے عظمیٰ کہ خوشی کے تعلق سے میں بات کر رہا ہوں تو ایک عقل مند شخص سے کسی نے پوچھا کہ دنیا میں مالدار شخص کون ہے؟ تو عقل مند شخص نے جواب دیا کہ جس کی خوشیاں سستی ہوں۔ سستی خوشیاں؟ میں کچھ سمجھی نہیں عادل صاحب، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی عظمیٰ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ہماری تمنائیں اور آرزویں اتنی بڑی ہوتی ہیں اور اتنی اونچی ہوتی ہیں کہ ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہوتی، لیکن ہم ان تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور پھر ہم مایوس ہی رہتے ہیں، پریشان ہی رہتے ہیں۔ ہم حال میں زندگی نہیں گزارتے بلکہ ہم مستقبل یا ماضی میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو عادل صاحب، جہاں تک اونچی خواہشوں کی بات ہے تو میرے خیال میں اونچی خواہشیں تو ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے حال میں رہتے ہوئے ہمیں کچھ نہ کچھ مشق ضرور کرنی چاہیے اسے حاصل کرنے کے لیے۔ بالکل یہی کہنا چاہتا ہوں میں کہ جب ہم اگر اچھی چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جو اس کے لیے حقائق ہیں ہم ان پر خوب محنت کریں، ہم پریشان نہ ہوں۔ تو چلیے پھر آگے بڑھتے ہیں اور خداوند کے کلام پر غور کرتے ہیں جو اسی تعلق سے ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے۔ جو کلام پر توجہ کرتا ہے بھلائی دیکھے گا، اور جس کا توکل خداوند پر ہے مبارک ہے۔ دانا دل ہوشیار کہلائے گا، اور شیریں زبانی سے علم کو فراوانی ہوتی ہے۔ عقل مند کے لیے عقل حیات کا چشمہ ہے، اور احمقوں کی تربیت حماقت ہے۔ دانا کا دل اس کے منہ کی تربیت کرتا ہے اور اس کے لبوں کو علم بخشتا ہے۔ دل پسند باتیں شہد کا چھتا ہیں، وہ جی کو میٹھی لگتی ہیں اور ہڈیوں کے لیے شفا ہے۔ سنی ہم نے آج کی تلاوت اور بہت ہی بابرکت بات کہ جو کوئی کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی دیکھے گا، یعنی کہ ہر وہ شخص جو خدا کی قربت میں وقت گزارتا ہے، خدا کے ساتھ وقت گزارتا ہے، وہ ہمیشہ اچھی باتوں کو اپنے اندر جذب کرتا ہے، اور بے شک جو خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں پھر ان کے لیے ہر طرح کے حالات میں خدا بھلائی کو پیدا کرتا ہے۔ تو ابھی وقت ہے حمدیہ گیت سننے کا، آئیے مل کر سنتے ہیں۔ نہایت رحیم خدا، مہربان مہربان مہربان، خودی مغصے وچ صدا، مہربان مہربان مہربان، رحم و دعوت کے ہے کمال، فلیائی کردہ سب نانال، سب خلقت دوستوں ہے نہال، مہربان مہربان مہربان، نہایت
रब तेरी बादशाही दी, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, बजुर्गी दसदे रहिंदे वी, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, ओ करदे रहिंदे हन बयान, तां सारे लोकी लैन पछान के तेरी कुदरत पे पाया, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, निहायत है रहीम खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। या रब बादशाही तेरी भी, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, हमेशा टिकर रहेगी। जी तो सुन रहे थे हम बहुत ही खूबसूरत और बाबरकत और बड़ा तसल्ली बख्श हमदिया गीत निहायत है रहीम खुदा। तो यकीनन खुदावंद ताला की जात बहुत मेहरबान और रहम करने वाली है। तो आपके लिए भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप भी बहुत प्यार करते हैं, बड़ी मेहरबानी करते हैं, हमें खत लिखते हैं और SMS करते हैं या पैगाम भेजते हैं। तो जो सामीन इस वक्त मुझे सुन रहे हैं वो पता एक दफा फिर गौर से सुन लीजिए। आप खत लिखेंगे प्रोग्राम राहे जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। कॉल या SMS करेंगे 0333482593 के नंबर पर और व्हाट्सएप आप करेंगे 0305337731 और अगर आप फेसबुक यूजर हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं PCRM फैसलाबाद ID और इसके अलावा यूट्यूब चैनल है जनाब पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज और इस ID और इस यूट्यूब चैनल पर मौजूद प्रोग्राम्स पर आप कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना भी मत भूलिए। तो कोई भी जरिया इस्तेमाल कीजिए, आप जरूर हमसे राब्ता कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो आदिल साहब अभी भी बहुत ज्यादा सामीन ने हमें मैसेजेस और खतूत भेजे हैं। मैं चाह रही हूँ कि जल्दी जल्दी से सभी के मैसेजेस शामिल कर लिए जाए ताकि कोई रह न जाए। बिल्कुल। तो अभी असद मुराद साहब मैसेज लिखते हैं। आप कहते हैं कि जोशवा साहब की मेजबानी में प्रोग्राम सुना, आगाज में कलामी मुकद्दस और हमदिया गीत सुनकर बहुत ही मजा आया और बहुत ही बरकत मिली। खतूत और SMS का सिलसिला भी बहुत अच्छा लगा और कुदरत के करिश्मे में नींद के ताल्लुक से जो बात की गई उसे सुनकर भी बहुत अच्छा लगा। तो असद मुराद साहिब, प्रोग्राम राहे जिंदगी आपकी पसंदीदगी का बायस हुआ और आपने फीडबैक भी दिया हमें बहुत अच्छा लगा। आपके इस खूबसूरत से मैसेज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सतलुज रेडियो लिसनर्स क्लब है और बहावल नगर से आपका ताल्लुक है और खत लिखने वाले हैं जी अब्दुल गफूर कैसर, चौधरी फहीम नूर और राना शमशाद अली। आपने कहा कि प्रोग्राम राहे जिंदगी ब्रादरम अनवर जोसेफ, ज़ुहर अल हक और नदीम साहब, डियर जोशुआ भाई आदाब अर्ज करते हैं और कहते हैं कि उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल, हम सभी खैरियत से हैं। आपने कहा कि जोशुआ जी की आवाज में प्रोग्राम सुना, बहुत अच्छा लगा। इब्तदाई गुफ्तगू मैट्रिक के रिजल्ट और वालदैन और तुलबा को मुबारकबाद से हुई और तकाबली जायजा पेश किया। प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीसों में वो बहुत हकीकत पसंदाना था और बड़ा अच्छा था। साथ ही इन्होंने तिलावत कलाम मुकद्दस, हमदिया गीत और दीगर सिलसिलों की भी तारीफ की है और फिर से इन्होंने यही सवाल किया है कि कुदरत के करिश्मे PCRM की उम्दा पेशकश है। पूछना चाहेंगे कि क्या ये आवाज मैडम उज़मा यूनुस की है? तो जनाब उज़मा यूनुस इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं। ये आवाज बिल्कुल इन्हीं की है और इन्होंने हादसात से बचाव के प्रोग्राम को भी बहुत पसंद किया। तो बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी साथियों का, आपकी पूरी टीम का। तो जनाब आप प्रोग्राम को सुनते भी हैं और इतने गौर से सुनकर आप उस पर तबसरा भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नवीद अहमद साहब ने कहा है कि
कुदरत के करिश्मे में नींद के हवाले से जो बात की गई कि अगर नींद पूरी ना हो तो इंसान सारा दिन सुस्त रहता है, उसे सुनकर बहुत अच्छा लगा और बकिया प्रोग्राम भी बहुत अच्छा था। इतना अच्छा प्रोग्राम पेश करने के लिए शुक्रिया राह जिंदगी। तो नवीद साहब, कमेंट लिखने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। अजहर पठान है जी, शहजाद कोट सिंध से आपका ताल्लुक है। आपने कहा कि अभी तक सेम नालों से पानी, जिनसे पानी का अखराज होता है, वो अभी तक नहीं हो सका। बहुत से ऐसे असर और रसूख रखने वाले लोग हैं जिन्होंने अभी तक उनको रास्ता नहीं बनाने दिया। तो कहते हैं कि हमारे लिए दुआ भी कीजिए। तो जरूर हम आप सभी के लिए दुआ भी कर रहे हैं, बल्कि हम कोशिश कर रहे हैं कि खुदा करे कि हम दूसरे दोस्तों को भी इस बात के लिए मुतहरक करें ताकि मिलकर आपके लिए दुआ की जाए और आपका जो मसला है, जो इस वक्त परेशानी है, वो खुदा ताला के फजल और करम की बदौलत जल्द अज जल्द हल हो सके। हम सभी आपके साथ हैं जी, आमीन सुम आमीन। तो अभी मेरे पास अगला मैसेज मौजूद है अजमल बशीर मेतला साहिब का, और आपने प्रोग्राम सुना यशवा बाई की मेजबानी में। आप कहते हैं कि नींद के ताल्लुक से जो बात की गई, जल्दी सोने और जल्दी उठने के फवायद के हवाले से, वो बहुत अच्छी लगी, उम्दा साबित हुई हमारे लिए। तो अजमल बशीर मेतला साहिब, आपके मैसेज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात आपसे ये कहना चाहेंगे कि जो भी अच्छी बात आप सीखते हैं उन्हें दूसरों से भी जरूर शेयर कीजिए। सामीन, फिर खतूत और SMS के सिलसिले को यहीं पर समेटने का वक्त हुआ चाहता है। अभी आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ड्रामा सेहत की बातें, जिसमें हम सराइकी जुबान पर मबनी कोई ना कोई हम सबक आमूज ड्रामा सुनते हैं। आइए मिलकर एंजॉय कीजिए। अड़ी थिया, अड़ी पुत्र, ए गाल न कर। मैं ताई को सोच सोच के मरदी वेंदी हां। मेरी ता कोई सुनदा न थिया, ना पै सुन देम ना पुत्र कंडे देम। खिंते मरा ते मैं क्या करा? ओ देख अम्मा नजर आया खड़े। कित्था है, कित्था खड़े? नजीरा भी कहनी बा लगे चंगा है। पता किथ गई है। इदे नाल आज खोल के गाल करेंदे हैं। करस मसी मसी तक कल्ला मिले साको। हां, सलाम थे अम्मा। वालेकुम सलाम। आहा, आज तो भेड़ जोरा भी आई बैठी है सारे घर। लाला मेरी गाल सुन। लाला तू ई कर, बई शादी चल। तो देखना शरीयत 4 शादियां दी इजाजत देंदी है। समझावे से इवें बेऔलाद थी के दुनिया तो टुर वणन ई कुल में कोई वडी बदनसीबी होंदी है। मैं को दसाओ तुसा। मैं मुदा गाल है बीबी, मैं दूजी शादी नहीं करेंदा। जो किस्मत छे तो इंदे चू अल्लाह दे देसी। पुत्र सुन, इंदे विचों नहीं देंदा। इंदी उम्र टप गई है, देखो ता कोई तकलीफ नहीं। मरता हंसा गया से जिंदा गुनाह निशान न रासी। आज ता मेरी धी ते पुत्र दुए आए बैठे। ओए अल्लाह करे ना दे वड्या उमरां थी वन ते वड्डा वक्त होने। आज ता करीबा घर च वड्डी रौनक है। नजरे दा पियो होता होवे। पहले तो ही को है ता समझा जो दूजी शादी कर किने। हाय 30 साल तू ता डिठो से हिंदी घर वाली ने बाल ना जाया। अगो मिट्टी देसी। हां ओए तो तू सच पे आदी है। समझावे ओए पुत्र नजरिया, ओए तुम भी दूजी शादी कर गन पुत्र। शरीयत च इजाजत है। कर गन पुत्र कर अम्मा गाल तो करन दे। बाबा शरीयत च इजाजत है, दूजी करन दा हुक्म कोई नहीं। लेकिन बाबा जे किस्मत छोसी तो बाल थी भी नहीं तो मैं हुन अपनी त्रीमे उत्ते पहाज नहीं पेंदा मुदा। लाला औलाद दे पर ते दूजी शादी करनी पोसी बस। मैं दूजी शादी नहीं करेंदा। मैं कई दफा अगे भी आखे बहान दे तो ठीक है ना, तो मैं वेना है। ओए मैं आदा बस तू हुन दफा थी वंज मेरे अखी दे अगो दफा थी वंज। ओए जे तेरी मर्जी नहीं तो ना कर पुत्र जोरा। ओए अपनी त्रीमत दे पिछो दीवाना है। ओए शाला उवा मरस ऊंदे जींदे बई नहीं पर नींदा नहीं पर नींदा। पता नहीं कड्डण साडे घर भाग लग सी। दंद दिखाई क्या था डॉक्टर करण लक्षण? कल दा वादा कीता आदे ए मामूली गाल है। नवे दंद इवे होसन जो पता भी ना लग जो नकली हैं। हाँ अच्छा ते ए दसो जो तुसा अम्मा भावे दे घर गया आवे ता? हाँ गया हम। भेड़ जोरा भी आ गई है। पर तो रज के मेरे गिले कीते हो से वे। ओहो उथा यो जी कोई गाल तेरे मुतालिक नहीं थाई। मैं जान दिया, मैं सुन दी वदिया।
तुम्हारी अम्मा तुम्हारी दूजी शादी दी तैयारी वती करे दी है। कोई ऐसी गाल कोई नहीं तो कह आके कोई एक बंदे को आके ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬੈਠੀ ਆਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਪਰਨੇਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੁਕੇਂਦੇ ਪਏ ਵੇ, ਦੱਸੋ ਚਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਲੁਕੇਂਦੇ ਵੇ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕਾਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ? ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੁਕੇਂਦੇ ਪਏ ਵੇ। ਪਰ ਕੇ ਤੋੜੀ ਲੁਕੇ ਸੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਰੇ ਫੇਸੋ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇਖ ਸੀ। ਓਹੋ जो खुदा न खास्ता में थी ही वने तो मैं कोई दस ते को मालूम की में थी वने ए ना पूछो मैं कोई दस ना ए दस। अच्छा मैं तो प्यारा लगदा हैं जे लगदा तो ए दस के ते को मेरी दूजी शादी की में लगसी। मैं पूछदा न सेंदी नहीं तू बोल तो सही रे साथ की में मालूम थी सी मेरी दूजी शादी दा। मैं दसा तो तू सा नाराज थी सो? मैं असलू नाराज कोई ना थी सा। तू झिझक ना अजक ना डर मेरे को साफ दस ते को क्या मालूम थी उन्हें? मैं डरती आ तू मता तो हाकू तकलीफ थी वे। ओह मेरे को कोई तकलीफ न थी सी। तू जरा मेरे को जल्दी ना दस बल्कि तू ये समझ के अच्छा जी कर ये समझ गए कि मेरी शादी दूजी थी गई है तो मैं नवी जाल को घर च घिन आया ते को की में मालूम थी सी। अच्छा तवल सुनो तू सही ख्याल करो जे मैं दूजी शादी दा सोच की ना ता वल तवल हकू मैं नहीं आग सकती शाला मेरे को मौत आ वजे। नजीरा रोमन धोमन बंद कर मुझे ना गाल सुन। मैं भावे औलाद थी वे या ना थी वे मेरा ते नाले वादा है कि मैं दूजी शादी बिल्कुल नहीं करनी। शाला हमेशा कायम रहे इवे समझ जो मैं मोई जी पया। वादा पक्का? पक्का क्या भुन्या होया वादा समझ पक्का। तो यकीनन बहुत से ऐसे खानदान हैं जो इस वजह से टूट जाते हैं कि उनको औलाद नहीं मिलती और इस बिना पर फिर वो दूसरी शादी करते हैं। तो मेरे ख्याल में किसी से ताल्लुक तोड़ने की बजाय हमें हमेशा अपनों से जुड़े रहना चाहिए और ये सारी नेमतें इनका देने वाला खुदा ताला ही है। हमें हमेशा उससे फरियाद करते रहना चाहिए बजाय इसके कि हम दूसरों से अपने ताल्लुकात इन वजूहात की बिना पर खराब करें। और अभी वक्त है आगे बढ़ने का, एक खूबसूरत से सिलसिले को सुनने का। मेरी मुराद है सिलसिला आप बीती का। आइए मिलकर सुनते हैं। मेरा नाम सबा नसीब है। आज मैं आपको जो वाकया बताने लगी हूँ वो गुज़श्ता 2 माह का है। इतवार का दिन था और मौसम बड़ा खुशगवार था और मैं भी बड़े खुशगवार मूड में उठी। लेकिन जब मैंने देखा तो मेरा बेटा बहुत बीमार था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि ये किस तरह से हो गया, क्योंकि रात को ये बिल्कुल ठीक सोया था। लेकिन जब मैंने उसको देखा तो उसका जिस्म तप रहा था। चूँकि इतवार का दिन था तो इस वजह से मैं परेशान थी कि मेरे हस्बैंड जो है वो आज मामूल से ज़्यादा बिजी हैं। तो इसलिए मैंने उन्हें कहा कि आप ऐसा करें कि मुझे मेरे भाई के घर छोड़ दें ताकि मैं वहाँ पर जाकर इसका अच्छे तरीके से अच्छे डॉक्टर से इसका इलाज करवा सकूँ। मेरे भाई का जो ताल्लुक़ है वो मेडिकल फील्ड से है। उन्होंने हमें सुबह सुबह के वक्त ही वहाँ पर छोड़ दिया और ख़ुद वो चले गए। चूँकि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही थी उन दिनों में तो इस वजह से वो हमें वहाँ पर छोड़ गए और हम इसको बाइक पर लेकर नेशनल हॉस्पिटल में चले गए। वहाँ पर जब इसको डॉक्टर ने चेक किया तो इसका गला बहुत ख़राब था, वॉमिटिंग रुक नहीं रही थी, तो इसको ड्रिप लग गई और हमें वहाँ पर हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। जब हम वहीं पर रहे तो डॉक्टर ने एक इसको सिरप लिख कर दिया और वो हमें वहाँ से मिला नहीं। तो मैंने अपने हस्बैंड से रब्ता किया कि आप ऐसा करें कि जब आप वापस आएंगे तो आप मेहरबानी से ये सिरप याद से लेकर आना, क्योंकि इसको ये पिलाना बहुत ज़रूरी है। वो रात को आ गए और उन्होंने वो जो सिरप है लेकर आए, हमने उसको पिलाया। मेरे जो भाई के घर के सामने जो घर है उन्होंने अपने घर की जो शेड है वो बढ़ाई हुई थी। मेरे हस्बैंड ने मामूल के मुताबिक वहीं पर उन्होंने अपनी गाड़ी जो है वो उन्होंने रोकी और रखी और रात हम लोग सो गए। सुबह को जब हम उठे तो चूँकि मैं अपने बेटे की वजह से जाग रही थी तो मुझे पता था कि सुबह 4 बजे से 6 बजे तक जो वो बारिश मूसलाधार हुई है। तो बारिश की वजह से एक अजीब सी घुटन थी, हबस लगी हुई थी और 9 बज गए और मैं अपने बेटे को नाश्ता करवा रही थी। मेरे हस्बैंड सो रहे थे और हम सब बाकी लोग उठ गए थे। तो बाहर गली में से एक अजीब सी आवाज़ आई और मैं बहुत परेशान हो गई। तो मैंने अपने भाई से कहा कि जल्दी से जाकर देखो किसी बच्चे ने गाड़ी पर कोई चीज़ तो नहीं गिरा दी।
لیکن جب ہم نے باہر جا کر دیکھا تو وہ جو ہمارے ہمسائے تھے ان کے گھر کی جو شیڈ تھی اینٹوں کی، وہ پوری کی پوری گاڑی پر گر چکی تھی اور گاڑی کا جو وہ بری طرح سے نقصان ہوا۔ میں ایک دم سے بہت زیادہ پریشان ہو گئی، بلکہ میرے جو پوری فیملی ہے وہ بہت پریشان ہو گئی، پورا جو محلہ ہے وہ باہر آ گیا۔ اور میں زیادہ اس لیے پریشان تھی کیونکہ یہ جو گاڑی تھی ہمیں ایک عزیز دوست نے گفٹ کی تھی اور یہ ہمیں بہت زیادہ عزیز تھی۔ ہم بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ میں جلدی سے اندر گئی اور اپنے ہسبینڈ کو میں نے اٹھایا کہ باہر آ کر دیکھیں گاڑی کا بہت نقصان ہو گیا ہے۔ جب وہ بھی باہر آئے تو بہت پریشان ہوئے اور محلے کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے اور جو میری فیملی ہے وہ بھی پریشان ہو گئی۔ سب کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جن کے گھر کی شیڈ ہے ان پر پرچہ ہونا چاہیے، تاکہ انہیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کی جو دیوار ہے وہ نازک ہے، گرنے والی ہے، اگر کسی کا جانی نقصان ہو جاتا تو بہت زیادہ پریشانی بن سکتی تھی۔ اور اسی دوران میں ایک بات میرے دل میں آئی کہ ایوب نبی کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس پر بھی اسی طرح سے اچانک مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں۔ اس کے 7 بیٹے تھے، بیٹیاں تھیں، اس کا مال و اسباب تھا، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ اس طرح کے حالات میں ان کا رویہ کیسا تھا؟ پھر یہ چیز میرے لیے انکریجمنٹ کا باعث ٹھہری کہ مشکلات میں ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا ہے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کیونکہ جو میرا بڑا بیٹا ہے اس سے 10 منٹ پہلے وہ اسی جگہ پر کھڑا تھا جہاں پر گاڑی کھڑی تھی۔ اس نے ہمیں بڑی مصیبت سے بچایا۔ اور یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں یہ آتی جاتی رہتی ہیں، اگرچہ یہ بھی خدا کی طرف سے ہیں، لیکن ہمیں اس طرح کے ماحول میں بھی خدا پر بھروسہ رکھنا ہے، اس پر توکل کرنا ہے۔ جب میں نے اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھا کہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر ہم نے ایک عجیب اطمینان خدا کی طرف سے اپنے دل میں رکھا اور خدا نے اس کے مطابق ہمارے لیے کیا۔ خدا نے اس گاڑی کو ہمارے لیے بالکل نیا کر دیا۔ جب گاڑی دوبارہ ہمارے گھر میں آئی تو لوگ بہت خوش تھے، فون کر کے مبارکباد دے رہے تھے، کیونکہ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات تھی کہ ایک جو دنیاوی برکت ہے وہ پھر سے ہمیں مل گئی تھی۔ تو عظما بڑی اچھی ہم نے آپ بیتی میں آج بات سیکھی کہ مشکل وقت میں بھی اپنی سوچ مثبت رکھنا چاہیے۔ تو جیسے اس سے پہلے بھی سیگمنٹ میں بات ہو رہی تھی کہ گو کہ بے اولادی جو ہے وہ ایک طرح سے بڑی پریشان کن بات ہے، لیکن سبھی چیزوں کا انحصار یا سبھی چیزوں کا جو دینے والا ہے وہ خدا تعالیٰ ہے، اور ہمیں مشکل وقت میں بھی اپنی سوچ کو اسی کی سوچ کے مطابق یعنی اسی کی مرضی کے مطابق رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں اس کے حضور التجا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں فہم اور دانائی عطا کرے۔ آئیے پھر اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکاتے ہیں اور مل کر کرتے ہیں دعا۔ خداوند، ہم آپ کی حضوری میں التجا کرتے ہیں، ہر طرح کے حالات میں آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اس کے لیے آپ کی شکر گزاری ہو، اور خداوند پاک خدا فضل بخش دیجیے، ہمارا تعلق آپ کے ساتھ مضبوط رہے اور ہمارے عزیزوں کے ساتھ بھی ہمارا تعلق بنا رہے۔ خداوند پاک خدا، ہم چھوٹی چھوٹی وجوہات پر اپنے تعلقات کو خراب نہ کریں، بلکہ آپ کی مدد کی بدولت اپنے رشتوں کو مضبوط کرتے جائیں۔ خداوند تعالیٰ، ہم اسی کے ساتھ سندھ اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ان علاقوں کو یاد کرتے ہیں جن میں ابھی تک لوگ پریشان ہیں یا متاثر ہیں سیلاب سے یا دوسری بیماریوں سے۔ خداوند تعالیٰ ان پر اپنا کرم کیجیے اور ہمیں بھی توفیق عطا کیجیے کہ ہم سب ان کی مدد کے لیے جتنا ممکن ہو سکے وہ اپنا حصہ ادا کر سکیں۔ اور یہ دعا مانگ لیتے ہیں ہم خداوند یسوع المسیح کے نام میں، آمین۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عادل مشتاق کو اور عظما یونس کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔